सलाम दोस्तों। गो के हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में अभी काफ़ी गुंजाइश है और हमारे बेशतर तालीमी इदारों में तहकीकी सोच रखने वालों को वो हौसला अफजाई नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। इसके बावजूद हमारे मुल्क में ऐसे शानदार जहन रखने वाले लोग पाए जाते हैं जिनके काम से सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपका तारुफ 3 ऐसे माहिरीन से करवाएंगे जो कि अपने अपने शोबों में तख्लीकी महारत के संगे मील तय कर रहे हैं। हमारी पहली बाकमाल शख्सियत का नाम है डॉक्टर सारा कुरैशी, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं और काबिल पायलट भी, और जो कि एक ऐसा हवाई जहाज़ का इंजन बनाने में मसरूफ़ हैं जिससे उड़ते वक्त सफ़ेद धुंधली धार खारिज ना होती हो। Talking about contrails is like a word coined from condensation trail, which means that when the aircraft releases its emissions, when it burns fuel, the two byproducts are carbon dioxide and water vapor. So they are very hot inside the engine, and carbon dioxide is a gas, it remains a gas. Water vapor is like in the form of steam inside the engine, and then when it comes out, it converts into a cloud. It condenses into a cloud. And since this cloud is very high, and you must have witnessed it when you're flying, it creates like an artificial blanket on the surface of the earth, and the water vapor acts as a greenhouse gas. It traps the heat of the earth as in any other greenhouse gas would do, and it prevents the visible spectrum or the visible light to enter the surface of the earth. So it is a global warming phenomena. इस पे अभी तक जितनी तहकीक हुई है उससे साइंसदानों ने ये साबित किया है कि इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज़्यादा है आसमान में. So this work was given to me as a research question during my PhD, and I started it at Cranfield, and then there was a considerable part of the research that I did back in Pakistan with my father, Masood Latif Qureshi, who's a very experienced senior scientist of Pakistan. And while looking at different technologies that people had, we were evaluating initially different technologies that people were trying to use to mitigate contrails. He devised, he invented a device which is like an add-on mechanism to an existing engine that basically condenses water vapor out of the exhaust emissions of an aircraft engine during cruise flight and converts it into liquid water and stores it on the aircraft, so that you are eliminating the source of contrails and you get a cleaner exhaust in the atmosphere. So he designed the complete thing. He got 2 international patents granted on it, and then I took that forward and I did some simulations. We developed the engineering model, and then I did some engine performance simulations and aircraft performance simulations on it to validate it. And I also did a segment of research on the chemistry of the emissions, when water is separated out of the exhaust. And that part was done with my mother, who's a professor in chemistry at Qaid-e-Azam University.
So we kind of, during my PhD, we tried to validate the technology with different aspects, as in the chemistry and the physics and the mechanical engineering aspect of it. I came back after my PhD, and then myself and my father, we set up this company, Aero Engine Craft Private Limited. It was named by my 6-year-old daughter because I think she's always around, you know, listening to our conversations. So we set it up. We got seed money from Karandas, Pakistan, through their Women Entrepreneurship Challenge, which is now called the Women Venture Fund. And we set up this company, and we started working on it. And we've been doing this commercially since 2018. And now, just progressing further, we are also, looking at, setting up a sustainable or a green airline, because the value chain is very important. You see, uh, you have an engine, you need an environment friendly engine, then you need an environment friendly aircraft, and then you also need an environment conscious airline to adopt environment friendly technologies and to adopt environment friendly operations. So now we are moving in that direction, and also moving in the direction of designing aircrafts. But that is, for now, the focus is obviously on this contrail free aircraft engine. जी, मेरा नाम हमीदुल्ला है और मैं एक रावलपिंडी के स्लम में पैदा हुआ हूँ और वहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे काम कर रहा था। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कारकुन हूँ, और मैं एक 1990 से लेके अब तक जो है ना उस पे काम कर रहा हूँ। 1990 से लेके तो 2000 तक मैंने 1000 बच्चों को पढ़ाया जो कचरे में काम करते थे, और 2000 से लेके 2009 तक मैंने सैनिटेशन पे काम किया, सीवरेज लाइनों पे काम किया, और 2009 से लेके अब तक मैंने अपनी कंपनी बनाई है ई गार्ड के नाम से। तो हम कचरे पे काम कर रहे हैं, हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ सैनिटेशन के इश्यूज़ थे वहाँ पे हम कचरे पे काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे होता ये है कि जो हमारे शहर जहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो जो डेवलप इलाके हैं वहाँ से तो कचरा बाकायदा गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं, या खुले रोड होते हैं, या इस तरह के इंतज़ामात होते हैं, तो वहाँ से लोग कचरा ले जाते हैं। या उसके अमीर लोग होते हैं तो वो कचरे के लिए पैसे भी दे सकते हैं, तो वहाँ से वो कचरा लेके लोग चले जाते हैं, वो 200-300 रुपये पे कर सकते हैं। लेकिन गरीब आबादियों में जो खुले प्लाट होते हैं वहाँ पे कचरा जगह जगह पे पड़ा होता है, और उसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं और प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो हमने ये किया कि एक छोटी सी कंपनी बनाई ई गार्ड के नाम से, और हमने उन जगह से मुख्तलिफ़ जगह से रेडियाँ लगा के वहाँ 100 रुपये महीना हम लेते थे, और रोज़ाना घर से कचरा इकट्ठा करते थे, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक हिस्सा जो होता है उसमें किचन वेस्ट होता है, जो 60% होता है, जो ग्रीन वेस्ट इसका होता है। एक हिस्सा जो उसमें होता है वो ये रिसाइकलेबल होता है। रिसाइकलेबल जो है उसमें हम जो है ना उसमें लोहा, तांबा, पतरा, प्लास्टिक, शीशा, कागज़, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो 25% होता है। 15% रिजेक्ट वेस्ट होता है, जिसमें पैम्पर हैं, सैनिटरी पैड हैं, उसका हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन हम घरों से कचरा निकाल के ला के तो गवर्नमेंट के डंपिंग साइट पे डाल लेते थे, और वहाँ से वो उठा के ले जाते थे, और उस सर्विस के हमें 100 रुपये फ़ी घर मिलता था। हम 2000 घरों से कचरा इकट्ठा करते थे, और ई गार्ड कंपनी हमारी जो है ना इस पे काम कर रही थी। हमें 2 लाख रुपए महीना 2009 में रेवेन्यू जनरेट होता था पर मंथ हम, और उस पे 19 वर्कर काम करते थे। तो फिर यूएन के लोग आए, उन्होंने कहा हमारे साथ इसको 6 शहरों में करें, तो हमने 6 शहरों में किया। लेकिन जहाँ हम घरों से कचरा निकाल के ले आते थे और जब यूएन उसके गवर्नमेंट के डंपिंग साइट पे डालते थे, तो गवर्नमेंट वाले नाराज़ होते थे। वो कहते थे कि आपने हमारा काम बढ़ा दिया है, आप जो है ना पहले ये नालियों गलियों में पड़ा होता है, ओपन प्लॉट में पड़ा होता है, आप बाहर ले आते हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा करते। तो फिर हमने रिसर्च की, और रिसर्च करके हमें पता चला कि एक ऐसी चीज़ मौजूद है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर, जो साउथ एशियन मॉडल है, जो साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, उन मुल्कों में हो रहा है। एक ऐसी जगह बनाई जाए हर आबादी के लिए कि एक कनाल जगह में कचरा आए और ज़ीरो हो जाए वहाँ पे।
तो हमने ये फिर आपके सामने जो नज़र आ रहा है, आपको मेरे पस मंज़र में आपको नज़र आ रहा होगा, एक ऐसा सेंटर बनाया कि जिसमें कचरा आता है और ज़ीरो हो जाता है। इसमें हम यहाँ पे लाके इसकी सॉर्टिंग करते हैं, तमाम कचरे को हम अलग अलग करते हैं, जो ग्रीन वेस्ट है उसकी हम खाद बनाते हैं, खाद फिर हम ये मार्केट में सेल करते हैं। और ये हमारा 5 किलो का बैग है, ये पौधों के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अभी सिंध में हमने इससे कपास लगाई है, 100 एकड़ ज़मीन में हमने कपास लगाई है। तो वहाँ पे हम सिंध में कपास लगा रहे हैं, इस्लामाबाद में और पिंडी में और मर्दान में हमने ये सेंटर बनाए हैं। तो वहाँ पे हम नर्सरियों वालों के पास ये बेचते हैं। 60% तो ये हल हो गया। बाकी इधर आपको एक प्लास्टिक और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस तरफ नज़र आ रही हैं, ये कारखानों में जाती हैं। 22 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ चलती हैं और ये इंडस्ट्री में जो वेस्ट एक घर से चला वो नाली में चला गया तो बेकार हो गया, लेकिन वही वेस्ट हम उठा के कारखाने को देते हैं और कारखाना इससे चलता है। किसी ज़माने में सोना स्मगल होकर दुबई से आता था, अब कचरा स्मगल होके आता है, क्योंकि हमने अपना कचरा जो है वो समंदर में डाल दिया है। हमने प्लास्टिक सी लाइफ को सारा बर्बाद कर दिया है, हमने अपनी दरियाओं को बर्बाद कर दिया है, हमने खाली प्लॉट बर्बाद कर दिए हैं। और जहाँ पे कचरा पड़ता है, अगर ऊपर से बारिश होती है तो अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर दिया और इससे मेथीन गैसेस डेवलप होते हैं। तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि इसका लीचेड मैनेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कचरा कुंडी में बैठे हुए हैं और बड़े आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 100 टन से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है और ये हम यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं और इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे हैं। कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं 3000 घर हैं, 5000 घरों के लिए एक कनाल जगह चाहिए होती है और एक कनाल पे तकरीबन 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद पूरी आबादी का कचरा जो है वो यहीं पे ज़ीरो हो जाता है। आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है, आप कहीं इसको लेके नहीं जा सकते, मतलब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्यूल कॉस्ट बच जाती है, लेबर कॉस्ट बच जाती है। इंडस्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, आपको पौधों के लिए खाद मिल जाती है। हम इस एक सेंटर से खेतों को भी आबाद कर रहे हैं और इससे कारखानों को भी आबाद कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। मैं हसामुद्दीन, रसाई लैब्स मेरी कंपनी है जिसका मैं फ़ाउंडर हूँ। ये मैंने 2016 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही फॉर्म की थी। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से था, नस्ट से मैंने डिग्री की थी और उसके बाद जो मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की वो एसेंशली कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे जिनको मैं परस्यू करना चाहता था और फिर इसी कंपनी के अंडर रसाई लैब्स के अंडर मैंने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया। ज़्यादातर मेरा फोकस सस्टेनेबल इनोवेशन के ऊपर जिसके अंडर मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अटेम्प्ट किया। बेसिकली एक तो मैंने यूनिवर्सिटी में होते हुए ही काम स्टार्ट कर दिया था हेम्प क्रीट के ऊपर। हेम्प जैसे आम अल्फाज में भंग भी कहा जाता है। ये एक बड़ा करामत पौधा है जिससे तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जिसमें पेपर है, जिसमें आपके पास रोप आ जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ जाता है, इवन गाड़ी के पार्ट्स भी आते हैं। और ये मटेरियल हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल था। पाकिस्तान में ये नेचुरली ग्रो करता है, लेकिन इस पे हमने एज सच देखा कि कोई काम नहीं हो रहा, जबकि जो बाहर के ममालिक हैं उस पे काफ़ी हेम्प पे काम हुआ हुआ है और हेम्प क्रीट पे भी काफ़ी काम हुआ हुआ है। तो ये जो पहली का प्रोजेक्ट था ये मैंने हेम्पको के नाम के अंडर एक कंपनी फॉर्म की। इसमें हमने इस प्रोडक्ट को रिफ़ाइन किया, इसके ब्लॉक्स बनाए जिनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी थी। मतलब ये कि आप अगर इस ब्लॉक से बना हुआ कमरा बनाते हैं तो उसमें आपकी एयर कंडीशनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इस कंपनी को बना के फिर मैंने अभी पिछले साल इसको सेल ऑफ किया। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हमने जियो एयरकॉन के नाम से, जियो के बेसिकली एक ग्राउंड सोर्स्ड जियोथर्मल एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की। और अभी लास्ट ईयर भी हमारा इस इनोवेशन को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमें 2 नेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइजेस भी अवार्ड आए, जिसमें एक बढ़ता पाकिस्तान कंपटीशन था और क्लाइमेट लॉन्च पैड था। इन दोनों में हमें फर्स्ट प्राइजेस अवार्ड आए। और इस टेक्नोलॉजी में भी हम एसेंशली ये कर रहे थे कि आपकी जो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर रहे थे। ज़मीन के अंदर जो आपकी नेचुरल एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है पूरे साल का, उसको यूटिलाइज़ करके, यानी कि आप ज़मीन में जब 10-15 फीट नीचे जाते हैं, जिससे बेसमेंट्स ठंडी होती हैं, तो पूरा साल आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर आता है जो कि तकरीबन 21 से 22 डिग्रीज तक होता है। जो ग्राउंड सोर्स्ड एयर कंडीशनिंग है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये बड़े अरसे से अटैम्प्ट किया जाता है, स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में। उसमें मकसद ये होता है कि नीचे
उनके लिहाज से गर्माइश होती है, क्योंकि हमारे जो सब ग्राउंड टेम्परेचर होता है इसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पाया जाता है। तो वो बेसिकली सर्कुलेट करवाते हैं स्लिंकी लूप्स डाल के, आपके वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं, जिससे वो नीचे की गर्माहट ऊपर लेके आते हैं। हमने अपने केस में इसी टेक्नोलॉजी को रेट्रोफिट किया अपने लिहाज से कि हम इंडिजिनस पर्पस के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमने इसमें ये किया कि हमने एक वो चीज़ यूटिलाइज़ की जो कि पाकिस्तान में पहले ही अवेलेबिलिटी थी, जिसकी वो हैं हमारे बोर होल्स। स्पेशली इस्लामाबाद एरिया में अगर आपको पानी चाहिए होता है तो ज़्यादातर घरों में एक बोर होल किया जाता है जो कि 150 से 200 फीट नीचे तक जाता है। और हमने यही सोचा कि इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में भी आपकी जो मेनली कॉस्ट आती है सबसे ज़्यादा वो यही डिगिंग की होती है, जबकि एक बोर होल हुआ हुआ है तो वो ऑलरेडी आपने एक तरह से वो काम किया हुआ है। फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे इसी चीज़ को मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल में लाने के लिए बोर होल के लिहाज से अपना हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन किया। तो एसेंशली यही होता है कि हम उसी बोर होल के अंदर एक अपना अलग यूनिट डालते हैं जो कि 200-150 फीट नीचे तक जाता है, और उसमें ही वो ठंडे पानी के बीच में अपने पानी जो ऊपर से पानी सर्कुलेट कर रहा होता है उसमें अपनी हीट को एक्सचेंज करता है। और वही वाला जब नीचे से ऊपर से पानी ठंडा होकर आता है तो ये ऊपर वाला जो हमने यूनिट बनाया हुआ उसी से वो वाला आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल कमरे के अंदर डिसिपेट हो जाता है। तो इन टर्न आप ऊपर की जो गर्माहट है उसको आप नीचे वाली ठंडक से कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो वो हमने उस पर काम किया। हमारा मकसद भी यही था कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपस में ओवरलैप भी करें और आपस में इंटीग्रेट भी हो सकें। तो मकसद यही था कि हम इन दोनों मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक बड़ा हाईली इफ़ेक्टिव लो कॉस्ट हाउसिंग सोल्यूशन बना सकें, जिसमें एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा सके और जो ऑफ कोर्स जो एंड यूज़र है उसके लिए भी वो सही मानी में लो कॉस्ट हो। तो हमारा ये मकसद था कि हम इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं और इसी तरह एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच के साथ इन चीज़ों को अटेम्प्ट करें। हमें अपनी नौजवान नस्ल को साइंस और माहौलियात की तरफ ज़्यादा राग़िब करना है और इल्म के पनपने के लिए एक ऐसा साजगार माहौल बनाना है जिसमें ना सिर्फ तहकीकी सोच को तक़वियत मिल सके बल्कि जिसमें अच्छे ख्यालात को मुल्क की माशी तरक्की से भी जोड़ा जा सके। First of all, science and engineering and technology is always considered very dull and drab, and it is always projected like that also. You have to make it bright, you have to make it colorful, because otherwise बच्चों के लिए, even girls के लिए, वो एक role model is always the actresses, models, singers, because वो हर वक्त टीवी पे देखते ही वो हैं, तो उनको भी वही चीज़ें नज़र आती हैं, साइंस इतनी नज़र ही नहीं आती। तो एक तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अब थोड़ा सा यहाँ पे तो अवेयरनेस है, लाइक जैसे बाहर के मुल्कों में अब वो बड़ा इनकरेज करते हैं स्टेम एजुकेशन, उसको कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and management. The second thing is a lot of students, they come to me and they say, oh, we like aerospace, but there's no scope in Pakistan. I said, if you do aerospace, come to me, I'll give you a job. लेकिन बात ये है ना कि it's not, ये भी एक सोच है, और ये जो बहुत जो उनके सीनियर्स भी डिस्करेज करते हैं कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। स्कोप तो आपने क्रिएट करना है ना। तो ये बिकॉज यू शुड ऑलवेज डू व्हाट इंटरेस्ट यू, और जहाँ आपका पैशन होता है या एप्टीट्यूड होता है, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू कैन एक्सेल. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड सो इट हैज़ टू बी अ चॉइस. जैसे अभी वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट में भी कहते हैं कि यू हैव टू बी अ वुमन ऑफ चॉइस. You see, so it's not you want to be a professional, you want to be a homemaker, whatever, wherever your interests are, your talents are, you have to choose that. मेरा यही एडवाइस है कि आपकी ये जो शुरू वाले ईयर्स होते हैं, स्पेशली आफ्टर यूनिवर्सिटी, इसमें आपके पास एनर्जी भी होती है, आपके पास आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उस तरह नहीं होती, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट. और एक चीज़ आप माइंड में ज़रूर उठाएं कि आपको फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना.
एक्सपेरिमेंटेशन नाम ही फेलियर का है। हमें लाइट बल्ब का एग्जांपल दिया जाता है कि इतनी बार फेल होके आप आगे गए। तो इसमें मेरा यही एडवाइस है कि यू ओनली नीड टू बी राइट वंस। सो आप अगर वो माइंडसेट लेके चलें और अपने इर्द गिर्द देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप अपनी टेक्निकल नो हाउ को यूज़ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और स्पेशली अब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आप देखें कि हज़ारों सालों तक हमसे पहले जो एक माइंडसेट रहा है वो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आपके पास वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो आपके पास दुनिया के बेस्ट टीचर्स, दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च इज़ ऑल अवेलेबल जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन अवे। तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए अपने इंटरेस्ट के लिहाज से जिस भी चीज़ में कोई आपको लगता है आप बेहतरी लाना चाहते हैं, तो बग़ैर इस बात के सोचे हुए कि आपको इसका एक फाइनेंशियल गेन होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी क्यूरोसिटी को ही सस्टेन करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप वो चीज़ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, आप कोशिश ज़रूर करें और कभी हरगिज़ इससे ना डरें कि लोग क्या कहेंगे या फिर इस चीज़ का फ़ायदा होगा नहीं होगा। तजर्बे करना मेरे ख़्याल से हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन हो सकती है। उनको यही माइंडसेट मेरी एडवाइस है कि लेके चलना चाहिए। एक और पहलू मैं आपको बता दूं जो बहुत अहम है कि हमारे पास जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कपास बहुत बड़ी मिकदार में, तो अगर यूरोप और अमेरिका जो है वो सारे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए हैं, हमारा जो कपास है ये चीज़ें जो हैं ये केमिकल पे हैं। तो अगर उन्होंने रोक दी किसी भी तरीके से WTO के तहत या किसी भी तरीके से उन्होंने ये रोक दी तो हमारी ये फसलें बाहर नहीं जा सकेंगी। तो हमें इसको ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना होगा। हमें अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी होगी। हमारी फसलें कम हो रही हैं। आप जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, आप अगर उनका इंटरव्यू करें आपको पता लगेगा कि हर साल जो हमारी फसल है वो फ़ी एकड़ पैदावार हमारी कम हो रही है। और उसकी वजह यही है कि हमारी ज़मीनें काम छोड़ रही हैं। आप कितने दवाइयों से चलाएंगे उसको, कितने जो है ना आप केमिकल से उसको चलाएंगे। आपको बिल आखिर इस तरफ जाना पड़ेगा कि ज़मीन की जो असल खुराक है वो उसको वापस आपको देनी होगी। तो अगर आप नहीं देंगे तो आपकी ज़मीन बर्बाद हो जाएगी।